to this lovely group of people on days which are very celebratory in nature. And this month in August, in the last week, we have 3 beautiful days. The first one was 15th of August. Now that's your Independence Day, the country's Independence Day from rulers, from people who ruled you for hundreds of years. The Independence Day was celebrated in a big way all over. But I sat back in a corner and I asked myself, has the nation really become free? Or a set of rulers who were foreigners have gone, and you, me, and everybody else today are still not free? We are living a life of enslavement in one form or the other. So I urge all of you to please lead a life that is free. Don't enslave yourself anywhere. And if you have to be enslaved, there is only one master whom we symbolically raise our fingers and say, God, Ishwar, Allah, Vaheguru, Christ, anybody. He is up there, whatever you believe in. Don't enslave yourself to anybody else. You are born free. Live free. You have only one life. Live it or leave it, but never enslave yourself. The second beautiful ceremony we had is Raksha Bandhan, where a sister ties a string on the hand of her brother. It's a symbolic thing to say that this man, this brother of mine, is going to protect this sister. You have Friendship Day, you have Father's Day, you have Mother's Day. Does this love end only on that day and begin on one day? And is it only confined to your sister? Should not be. Every brother should vow to his sister that not only will I protect you, every other woman who is here on this earth is like a sister to me, unless you happen to be another relationship of a wife or a spouse or something else. This is real Raksha Bandhan. It's not a Hindu festival, it's a universal symbolic thing which every male should vow that I will protect every woman on earth. तभी इसका कुछ मायने होता है. And the third beautiful thing we had is the Parsi New Year, Navroz. I carried out a study of the Zend-Avesta. That's the religious book. Just like you have a Quran, you have Gita, you have Bible. They have something called the Zend-Avesta. Big, huge book, number of chapters. And from those books, those chapters, I picked out the essence in 3 beautiful words. Humala, Hukata, Rashita. It means very simply, good thoughts, good words, good deeds. If you just follow this, don't think that it is only there in the Zend-Avesta. Don't think whether it's there in the Gita, not Bible, or not Quran, or not, or any religious book, or your Vedas. This is humanity's lesson. Good thoughts, good deeds, good words, good actions. Nothing more is required in life. Whether you go to a church, you don't go to a church, whether you go to a mandir or don't go to a mandir, whether you go to a masjid or you don't go to a masjid, whether you go to a synagogue or you don't go to a synagogue, whether you go to Aghyari or no Aghyari, it's a separate issue.
Your mandir, masjid, girjaghar is right here. Your God has planted it within you. And believe me, God knows only 4 words. It is love, the substance, the nichod of everything in life is in these 4 words: love. There is no other truth. If I love you and if I hate him or hate her, I am no good. I am non religious. I am not a human being. A good human being does only one thing: spreads love. Remember, from the outside, be with the world. From the inside, be with your Ishwar, Allah, Vaheguru, God, Christ, higher consciousness, whatever you believe in. Don't criticize anybody for not believing in what you believe in. His belief, her belief, good. And no matter what happens, let your center remain always calm, always undisturbed. This is the essence of life. And all religious scriptures, somewhere or the other, say this in their own language, in their own words. I was going through the newspapers a couple of days ago. Every day there is something which comes up which is called the obituary. ये लोग मर गए. सबके हंसते हुए चेहरे. एक भी उदास चेहरा है? नहीं. ये सब फोटो में ऐसा खिंचवाया है कि फोटो लेनी है, थोड़ा हंसो. And it's not only in one day's newspaper, ये आज का अखबार है. रोज ऐसा हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे. चाहे इनके बच्चे इनकी देखभाल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, चाहे इसमें सास ससुर जो भी है इन्होंने अत्याचार अपनी बहू पे किया हो, बेटियों बेटों पे किया, सब हंसते हुए चेहरे. असल में रियलिटी क्या है? चलो, I think you put the older one. असल में reality, I put a picture of a crowd. And in the crowd, everybody has got a sad face, a long face, एकदम सूनी आंखें, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं, कुछ भी नहीं. That is the reality. But that is not what is life. At the end of your life, do you want, when you go to your grave, when you go to the crematorium, amongst the people who are wishing you goodbye, there will be unseen figures and hopes saying, I was your dream. You did not fulfill it. I am dying with you. मैं तुम्हारी मुराद हूं, तुमने पूरी नहीं की, तुम्हारे साथ ये मुराद भी मर रही है. Would you like that? Obviously no. So live your life fully. Do what your heart tells you. There is nothing right, there is nothing wrong. The only thing that is wrong is anything which you do which harms somebody else. Otherwise, everything is good. I'm reminded of a Sufi story. There was a Sufi saint, and when he was on his deathbed, last breath, he said, it is only now
that I realized that I was alive. What has he done for 70 years? Not lived his life. It is not the fault of life. It is your fault, his fault, not to experience life, not to allow life to be lived through you. Your God has given you this life. You are a part of him. You are an image of him. You are his heart and soul. You are his creation. He has sent you here to live, to fulfill your dreams, to be happy, to spread happiness, to spread joy, to serve others. That is what he has sent you for. Fulfill these things. Every religious books, if you take the nichod, this will be the message. In 600, 800,000 books and so many ayats and so many mantras, the nichod is just this. Nothing else. Your whole journey in life has also to be inward. We said, from the outside, be with the world. Yes, your God has sent you with some purpose, with some कर्म करने हैं. आपने उन कर्मों को पूरा कीजिए, उसमें कोई भी कमी ना छोड़िए. But that is only one part of your life. The greater part of your life is your inward journey. Travel inwards. There lies your peace. There lies your happiness. There lies your glory. There lies your connection with him. एक होती है बाहर की तार और एक होती है अंदर की तार, अंदर का जोड़. ये आपका अंदर का जोड़. Don't allow it to get ever diluted because of बाहर का जोड़. बाहर का जोड़ बनाते बनाते अंदर के जोड़ को कभी न भूल जाइए. It's good to have money. It's good to earn a very good life. It gives you a good living. It gives you comfortable living. वो सब होगा तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हो. उसके बिना नहीं कर सकते हो. करिए. But the question is how much. पैसा आपके लिए है, आपके उपयोग के लिए है. पैसे को आपका उपयोग न करने दें. Don't be used by these worldly things. Use it. It's meant for you. It's created for you. एक यंत्र ना बन जाए. Don't become a machine. Remain a human being. And a human being has a head. It has a heart. Let your heart be golden. Let it be sparkling. Let it be full of love. Let it be full of compassion. Let it be full of kindness. Let it be full of forgiveness. Let it be full of fellow feeling. उस रोशनी में छा जाओ कि जहां भी आप जाओ, जहां भी आप पहुंचो, आपको देख के एक दिल में, एक चेहरे पे मुस्कान निकले कि इसके आने से मुझे बहुत खुशी मिलती है. बी दैट. ऐसा ना हो कि जहां आप जाओ लोग कतराएं, यार कहां से आ गया, कहां से आ गई. होता है कि नहीं? ऐसे सड़क के निकल जाते हैं हम लोग. बी द वन टू स्प्रेड स्माइल्स एंड होप इन अदर्स. दैट इज योर थिंग. और बाहर के लगाव नहीं होना चाहिए, बाहर के कर्म होने चाहिए. एक सूफी कहानी है. I'm very fond of stories. एक लकड़हारा था. ओल्ड मैन, ओल्ड वाइफ. सुबह निकल जाते थे जंगल में, लकड़ी इकट्ठा करते थे, लाते थे, बेचते थे. जितनी अपनी जरूरत होती है खाने पीने के लिए, शाम के लिए, उससे खरीदते थे. बाकी पैसा बांट देते थे. केप्ट नथिंग फॉर देमसेल्व्स. लोगों ने कहा, यार तुमको अपने कल की चिंता नहीं? इसे चिंता करने वाला तो वो है, वो क्यों चिंता करूं, वो देगा. एक बार ऐसा हुआ कि लगातार 3-4 दिन बारिश हुई. ये बूढ़ा बूढ़ी जंगल में नहीं जा सके. भूखे थे, प्यासे थे. चौथे दिन जब सूरज निकल, जंगल में गए, लकड़ियां काटी, ले आए.
और जब वो जंगल से घर की तरफ, अपनी कुटिया की तरफ, अपने हट की तरफ लौट रहे थे, तो द वुडकटर सडनली सॉ कि उस पगडंडी में एक थैली पड़ी हुई है और थैली से झलक रहा है सोने के सिक्के। वो यहां चल रहा था, उसकी वाइफ 10 कदम दूर थी। उसने सोचा, मैंने तो अपने वासना पे काबू कर लिया, आई हैव ओवरकम माई ग्रीड फॉर एवरी वर्ल्डली नीड, बट आई डू नॉट नो अबाउट शी माइट स्टिल बी ग्रीडी, एंड आफ्टर ऑल वजह भी है, 4 दिन से हम लोग भूखे थे। He quickly picked up that थैली, went to the bush, और मिट्टी से उसको कवर ही कर रहा था कि वाइफ came and caught up with him. She says, क्या कर रहे हो? अब वो बताना भी नहीं चाहता था कि क्या किया उसने, लेकिन उसने एक वचन दिया हुआ था, लिया हुआ था, मान्यता की हुई थी कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा, मेरे दिल में ये ख्याल आया था, मैंने तो अपने आप पे काबू कर लिया, अपनी वासना पे, अपनी भूख पे, अपनी ग्रीड पे, लेकिन मुझे संकोच था कि कहीं तुम न फिसल जाओ, तो आई वॉज हाइडिंग इट अंडर द बुश। His wife gave a laugh and he said, तुमको अभी तक सोना दिखता है? तो प्लीज आप अपनी कमजोरियों को दूसरे पे न थोपें। Don't ascribe your fears on others. उस वुडकटर का लालच नहीं गया था, उसकी वाइफ का तो कबूतर चला गया था। और आम तौर पे मेरा तजुर्बा है कि फीमेल स्त्रियां आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, एकदम हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है, हमसे बहुत ज्यादा सही रास्ते पे चलने वाली है, हमसे बहुत ज्यादा काबिल है। They are more mature. Absolutely, good-hearted. That is why they become good mothers, good sisters. They tolerate so much of nonsense of everybody, including the brothers whom they tyranny do. लड़के को भी झेलना है, पति को भी झेलना है। Exactly. उसी गांव से थोड़ी दूर एक और बात ऐसी ही घटी थी। एक संत महात्मा और उसका चेला जा रहे थे और वो लोग को दूसरे गांव में पहुंचना था। गांव अभी दूर था, अंधेरा छाने वाला था। जो सीनियर सन्यासी था, जो सीनियर साधु था, उसने अपना झोला कस के पकड़ रखा था और छोटे वाले से पूछ रहा था, भैया कितनी दूर है, जंगल से जाना है, कोई डर तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, कब पहुंचेंगे हम लोग अपने गांव में ताकि हम रेस्ट कर सके, विश्राम कर सके। तो लड़के ने कहा, जिस चाल से हम चल रहे हैं बहुत देर लगेगी पहुंचने में, अभी तो गांव दूर है। फिर 1 किलोमीटर चले, फिर उस बूढ़े संत ने यही पूछा कि कितना दूर है गांव, सब सेफ तो है, कोई खतरा तो नहीं है, कोई चोर डकैत तो नहीं आएगा। छोटे सन्यासी को लगा ये चोर डकैत की बात मेरा गुरु क्या कर रहा है, रास्ते में जाएंगे, अगर जानवरों का खतरा है तो मुझसे पूछे, वो अलग बात है, ये चोर डकैत की क्या बात कर रहे हैं। 1 और किलोमीटर चले, बूढ़ा गुरु थोड़ा थक गया था, उसने कहा 2 मिनट यहाँ बैठ के विश्राम कर लेते हैं, मैं थोड़ा अपने आप को हल्का करने भी जा रहा हूँ 50 गज दूर, ये रही मेरी गठरी, इसको संभाल के रखना। लड़के ने कहा ठीक है गुरुजी आप जाओ, मैं संभालता हूँ इसको। जब गुरुजी थोड़े आंखों से दूर चले गए, उसके शिष्य ने उस पोटली को खोल के देखा तो देखा उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। यही वजह थी कि
सीनियर पूछ रहा था कि चोर उचक्कों से डर तो नहीं है। आजकल के बच्चे जैसे हैं बहुत समझदार होते हैं, वो भी बहुत समझदार था। उसने वो सेने की ढेल उठाई और उठा के दूर फेंका, उसके बदले एक पत्थर रख दिया था। सन्यासी रिलीव होके जब बड़ा वाला आया, उसने देखा थपकी मार के कि हाँ भाई वजन है, अभी तक है, कहीं गया नहीं। उसने कहा चलो चलते हैं गांव की तरफ, पहुंचते हैं। उसके जूनियर ने उसको बुलाया कि जिस चीज का आपको डर था, मैंने वो डर निकाल दिया है। गुरु ने कहा क्या डर निकाल दिया है, क्या किया? मैंने कहा आपने जो वहां छुपा रखा था वो मैंने निकाल दिया है। इसके बदले एक पत्थर रख दिया। आपको लग रहा उस वजन से कि अब भी आप वही माला माल हो। बूढ़े ने कहा कोई जरूरत नहीं, अब यही सो जाते, अब यही आराम करते, अब कोई खतरा नहीं। याद रहे, हर चीज का मूल्य, हर चीज का अर्थ, हर चीज की वैल्यू उतनी ही होती है जितना आप उसको देते हो। हर चीज का मूल्य, अर्थ, मीनिंग, वैल्यू उतना ही होता है जितना आप उसको देते हो। So you don't get wearied by anything else. These are beautiful things, but these possessions should not tie you down from living a beautiful life and leading a life full of worry. What for? कहना आसान है what for, लेकिन हम सब का मन ऐसा चोर होता है ना, फिसल ही जाता है। पुराने जमाने में एक गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जहाँ बच्चे, यंग लोग आजकल स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ आश्रमों में जाके सीखते थे अपने गुरुओं से, और बड़ा टेस्ट होता था। गुरु इफ ही फाउंड यू फिट ही वुड टेक यू इन। तो ऐसा ही एक गरीब लड़का एक गुरुकुल में पहुंचा। उसने अपने आचार्य से कहा आप मुझे अपना लोगे, मेरे पास कुछ है नहीं, आई डोंट हैव नथिंग विद मी, विल यू प्लीज, बट मैं अपनी पूरी श्रद्धा से दूंगा। गुरु से ओके, बट इट्स अ टफ लाइफ। तुम अभी 12 साल के हो, 3 साल तक तुमको सिर्फ झाड़ू पोछा, पानी लाना, आग जलाना, खाना बनाना, आश्रम को साफ करना, बस तुम्हारी यही ड्यूटी होगी। गाय भैंस बकरी चलाना, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करना। मैं तुमको और कुछ नहीं सिखाऊंगा 3-4 साल। मंजूर? मंजूर। ट्रेनिंग चालू हो गई। 3 साल ये कट गए, फिर 5 साल और कट गए, जिसमें जो भी सिखाना था उस आचार्य ने तमाम तरह का ज्ञान, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे रिलीजियस बुक्स का हो, चाहे लाइफ के बारे में हो, हर तरह की चीज उसको सिखा दी। और शिष्य जब जाने लगा, उसने कहा महाराज मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप तो जानते हो मैं गरीब हूँ, न माँ है न बाप है। आपने मुझे बहुत आपने प्रतिज्ञा की है, मुझको बहुत सिखाया है। मैं आपसे सिर्फ एक वचन लेना चाहता हूँ कि मैं कुछ समय बाद जब मैं बाहर की दुनिया में जाता हूँ, वहाँ से जो मैं लाऊंगा, गुरु दक्षिणा दी जाती है, मैं आके आपको गुरु दक्षिणा के रूप में पेश करूँगा। आप प्लीज ना मत कीजिएगा, स्वीकार कीजिए। और मेरा इरादा है मैं आपको 5 सोने की मुद्राएं भेंट करूँगा। गुरु ने हंस के कहा आशीर्वाद, जाओ देखा do what you want। ये शिष्य बाहर आया, अपने पुराने गांव में पहुंचा, तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था। And he went to his friend and he told him कि मुझे तो इस महात्मा से सब कुछ मिला है, पूरा ज्ञान मिला है। He's taught me so much and I have promised to give him 5 मुद्राएं of gold। बट मैं लाऊंगा कहाँ से? मेरा तो कोई आगे है, ना पीछे है, ना फादर है, ना मदर है, कोई सपोर्ट नहीं है। His friend told him, don't worry,
यहाँ का जो राजा है वो बहुत दयावान है। जो भी उसके पास सुबह जाता है और उससे भिक्षा मांगता है, चाहे जो भी भिक्षा हो वो तुमको दे देगा। उससे जाओ कल सुबह 5 स्वर्ण की मुद्राएं मांगो। लड़का उठा, अच्छी तरह से तैयार हुआ, राजा के गेट पे पहुंचा। राजा अपने बगिया में टहल रहा था, फूलों की खुशबू ले रहा था, साथ में वजीर था। और जब वो बगिया में टहलते टहलते गेट के पास लड़के के पास पहुंचा, लड़का थोड़ा सिमट रहा था कि कैसे मांगू कैसे मांगू। राजा ने वजीर से कहा, ये लड़की के दिल में कुछ है, पूछो क्या है। लड़के ने बोला, मैं राजन से मिलना चाहता हूँ। गया मिलने। उसने कहा, राजन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने सुना है कि आपका ये नियम है, वचनीय नियम है, कि जो भी आपसे जो मांगता है सुबह आप देते हो, उसको ना नहीं करते हो, निराश नहीं भेजते हो। इसे बिल्कुल ऐसा ही मेरा वचन है, लेकिन आज तक कोई आया नहीं। तुम पहले आदमी हो जो आए हो, मांगो क्या मांगना है मैं तुम्हें दूंगा। लड़के के दिमाग में लगा, मांगो क्या मांगना है मैं दूंगा। मैं तो बड़ा बेवकूफ हूं, अगर सिर्फ 5 मांग लो, 50 क्यों ना मांगू। तो राजन सोच लीजिए, वचन से पीछे नहीं हटोगे। ये सब बिल्कुल नहीं, तुम मांगते तो देख मैं राजा हूं। राजा के इस रौब से बोलना हुआ, वो जो 500 होता था 5000 हो गया कि मैं 5000 क्यों ना मांगू। लड़का भी ब्लैंक, लुकिंग एट द राजा। ने दिमाग में उसके घूम रहा था कि 5000 क्यों नहीं, एक और शून्य क्यों ना जोड़ दूं, और फिर एक और शून्य क्यों ना। जब ये कह ही रहा है वचन से पीछे नहीं हटूंगा, सब दूंगा, तुम मांग के तो देख, मुझे 0 ऐड करते जाने दो। लेकिन गुरुकुल में सिर्फ 6 0 तक सिखाया था, उसके आगे गिनती नहीं जाती। तो इसे यहाँ पे क्यों रुकूं? इसे मांगना ही है तो इस राजा से मैं उसका पूरा राज दरबार क्यों ना मांग लूं। राजन, मुझे आपका पूरा राज दरबार चाहिए, सिवाय ये 2 कपड़े जो आपने पहन रखे हैं ऊपर नीचे, ये वस्त्र आप ले जा सकते हैं, बाकी इस राजमहल को खाली कीजिए इन द नेक्स्ट 1 hour। राजा looked at him. He looked up to God and he said, "Thank God." जिसका मुझे इंतजार था वो आ गया। And he told the young child, शायद तुमको ये 2 वस्त्र मेरे को देने में भी तकलीफ होगी, मैं ये भी यहाँ छोड़ जाता हूँ, तुम इसको भी रख लो। लड़का घबरा गया। उसने कहा, राजा जी रुक जाओ थोड़ा, 1 मिनट, आप एक और चक्कर लगाने दो, लगा लो, मुझे थोड़ा सोचने दो। कोई बात नहीं, सोचो। राजा चक्कर लगा गया। तब तक इस लड़के का दिमाग थोड़ा सा, उसमें ये बात आई कि ये राजा जिसके पास सब कुछ है, ऑब्वियसली उसके लिए ये पूरा राज, टाट पाट, कपड़े लत्ते, सिंहासन, सोनों की मुद्राएं, हीरा मोती कोई मायने नहीं रखती है। असली खुशी कहीं और है, इन चीजों में नहीं है। राजा चक्कर लगा के आ रहा था, बिफोर ही रीच द गेट दिस बॉय डिसअपीयर्ड एंड वेंट अवे। कुछ नहीं हुआ था। लेसन लर्न, आपकी असली खुशी और कहीं पे वहां नहीं है जहां बाहर आप सोच रहे हो। वो चीजें सिर्फ उपयोगी है, जरूरत की है, और उस हद तक जरूरत की है जिस हद तक आप सोचते हो। नहीं तो हम क्या करते हैं आजकल, देखते हैं भाई मेरे नेबर के पास
एक मोटरसाइकिल है, अगला कहता मैं रॉयल एनफील्ड खरीदूंगा, रॉयल एनफील्ड खरीद के लाता, तीसरा लड़का हार्ले डेविडसन ले आता। नसरुद्दीन के साथ ऐसी एक बात हुई। नसरुद्दीन के पास एक गाड़ी थी और उसके नेबर ने उनसे बड़ी एक गाड़ी लेके आ गया। तो नसरुद्दीन की बीवी ने कहा सुनते हो जी? बोले क्या है बेगम सुनाओ। He said, हमारे नेबर्स ने हमसे बड़ी गाड़ी खरीद के लाई, अपने पास दो ही उपाय हैं अब, उनकी गाड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदो या चलो हम दूसरे मोहल्ले चले जाते हैं जहां हमारा कंपटीशन ना हो। नसरुद्दीन ने सोचा यहाँ तो मालूम है ये गाड़ी अगले मोहल्ले पे जाऊं पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी होगी। बेगम डोंट वरी, कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा, वही गाड़ी। डोंट रन आफ्टर competing with others, be happy with yourself. उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को be thankful for what he has given you. He will look after you. He knows what to give you and he knows when to give it to you. Please remember, he knows what to give it to you and he knows when to give it to you. दो फकीर शाम को अपनी कुटिया की तरफ जंगल से लौट रहे थे। अचानक रास्ते में बहुत बारिश आई, बहुत तूफान आया और जब वो अपनी कुटिया पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुटिया की आधी छत उड़ गई, दीवारें बच गई हैं, आधी छत उड़ गई है। जो छोटा फकीर था उसने अपने बड़े फकीर से कहा ऊपर वाले को भी देखो, कितना इनजस्टिस है। गांव की तरफ देखो, लोगों को जो चीट करते हैं, राशन में मिलाते हैं, तेल में मिलावट करते हैं, हर धंधे में धोखा करते हैं, उनको बड़े बड़े घर दिए हुए, बड़े बड़े महल दिए हुए, उनको साधन दिए हुए सुख के साधन के, पर हमारी एक छोटी सी झोपड़ी और हम उसके गुण गाते रहते हैं, उसका नाम लेते रहते हैं सारा दिन। उसने आधी छत उड़ा दी। जो सीनियर फकीर था उसने कहा चिंता मत कर, चल मंदिर। उसका दोनों सोए उसी छत में। छोटे लड़के को नींद नहीं आई कि आधी छत उड़ी हुई है और जो सीनियर था वो मजे से सो भी रहा था, जाग भी रहा था, गीत भी गा रहा था, गुनगुना भी रहा था, उसका शुक्र भी दे रहा था। वो कह रहा था वाह क्या तेरी लीला, कितनी मेहरबानी है, आज तक पता नहीं मैं किस कैद खाने में जी रहा था, तूने आधी छत उड़ा दी तो मैं बारिश की टिप टिप की म्यूजिक भी सुन सकता हूँ, मुझे भिगाती भी नहीं है, और जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो मुझे चांद भी नजर आता, मुझे तारे भी नजर आते हैं। वाह तेरी क्या लीला है, काश मुझे इतना मालूम होता, मैं शुरू से ही आधी छत वाला हट बना था। Be thankful for what you have, where you have. Please remember, the only thing and one important thing which holds you back in life is your anger. सबसे बड़ा पॉइजन यही है, एंगर, जेलसी, ग्रीड। ये तीन चीजें इंसान को बर्बाद कर देती। ये ना हो तो आपके जीवन में सुख ही सुख है। एक वेस्टर्न का फिलोसोफर था, उसका नाम है गुर्दजेव, और गुर्दजेव जब 9 साल का था उसके पिताजी चल बसे, died. But on his deathbed he told Gurdev, look, I am your father. I have not been able to give you anything, neither a house, no security, no money, nothing. But I am going to leave with you a word of wisdom. याद रखना, जब भी तुम्हें गुस्सा आए या तुम्हें लगे कोई गुस्सा दिला रहा है, या तो तुम चुप रहना, और अगर तुम्हारा ज्यादा मूड बनता है जवाब देने का तो उसको बोलना थैंक यू, आई विल आंसर यू आफ्टर 24 आवर्स। और इस 24 आवर्स में सब कुछ बदल जाता है।
याद रखिए, अगर हम लोग कहते हैं XYZ ने ABC ने मुझे गुस्सा दिलाया है, बिल्कुल रॉन्ग। कोई किसी को गुस्सा नहीं दिला सकता है। गुस्सा आपके भीतर दबा हुआ है, आपने दबा के रखा हुआ है। That person is only acting as a spark. एक वजह चाहिए थी आपको उसको निकालने की, वो आपको बहाना मिल गया। कोई किसी को, आप अगर निर्णय कर ले मेरे गुस्सा नहीं होना, तो आप करा सकते हो, कोई नहीं। दिस इज द जब आप चारों तरफ पेड़ को देखते हो, जमीन से निकलता है, बढ़ता है, फूल होते हैं, फल होते हैं, पत्तियां होती हैं, पक्षी गाते हैं। व्हाट इज द ट्री डूइंग? वो आनंद की खोज में है और वो आनंद बांटता है, उस क्रिएटर की तरफ ऊपर बढ़ता है और आनंद बांटता है अपने फल से, फ्रूट से, फूलों से। पक्षी आके उसमें गाते हैं, पक्षी, जानवर यही करते हैं, सब आनंद की तलाश में। अगर पत्थर को भी आप देखें और उसको कुछ अस्तित्व दें, वो भी आनंद की तलाश में है। और याद रखें, अगर आप सही मायने में आनंद की तलाश करते हो, ब्यूटीफुल, इनोसेंट, प्योर लव फॉर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, फॉर योरसेल्फ, इस लव में आपको परमात्मा मिलेगा। आनंद से परमात्मा मिलता है, आनंद से गॉड मिलता है, आनंद से ईश्वर मिलता है, अल्लाह मिलता है। आनंद की खोज करो, आनंद बांटो। आप देखो कितनी आसानी से आपको परमात्मा मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। You have only one life, live it, don't leave it. और अगर हम लोग सोचते हैं कि दुख सिर्फ हम में है और दूसरों में, सिर्फ अंबानी के घर में सिर्फ खुशी है, गलत। Can somebody read हिंदी? फरीद ने ये कहा, जो जानिया दुख मुझको। मैं समझता हूँ कि दुख मुझको है, सिर्फ दुख सबाई जग, सारे जग में दुख है, हर एक को दुख है। ऊंचे चढ़कर देखा, घर घर एहो यग। थोड़ा सा उस दुख से, अपनी सिचुएशन से अलग हो गया, मैंने देखा हर जगह है। आपने दुख को साइड में रखना है, उसके ऊपर लटक नहीं जाना है, ना ही उसको दबाने देना है आपको जिंदगी में। उस दुख को कहा, तेरी जगह वही, तू रहे वहां पे, मैं तो खुशी की तलाश में, आनंद की, प्रगति की तलाश में है, उस खोज में मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं। That is what is life. Don't suffer. Never allow dukh or any situation to make you suffer. In the past few talks, I think about 6 months ago, in this very platform, I have quoted people who have overcome their handicaps, overcome their miseries, overcome their situations to excel in this world, to achieve. I remember I had quoted Vilma Rudolph from America. She was a paralytic patient at birth, and she won the gold medal in 100 meters in the Olympics. I had quoted the example of Arunima Sinha, who lost her leg in a train accident when some gundas tried to snatch away her belongings in a train when she was going to give an interview for being recruited as an inspector in CISF. She did not lose her resolve. उसने इस सिचुएशन को अपने आप पे हावी होने नहीं दिया, and she was the first handicapped woman to climb Mount Everest. We have Stephen Hawking, world's greatest scientist, who since birth cannot speak, cannot talk, is wheelchair bound, and the world acknowledges his greatness. There are other examples too. But today, I'm going to talk about somebody who inspired me in life, greatly inspired me in life. And मैं उस गॉड का, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु का, सबका थैंकफुल हूँ कि मुझे
कुछ महीने पहले इस इंसान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई. I came to know about it. In this very city of Bombay, where lakhs of people board into local trains and travel like sardines daily, right from Virar to Thana to Churchgate and back through thousands of trains, overcrowded trains. ऐसी ही ट्रेन लगी 7 अक्टूबर को 2008 की कहानी. There was a young girl with a lot of dreams in her eyes, with a financial background which was not very strong. Incidentally, I also come from a very weak financial background. कुछ नहीं था मेरे पास. मेरे पिताजी जब गए, हम लोग बच्चे थे, ना पेंशन था, ना घर था, ना कुछ नहीं, वो अलग था. This girl was under serious circumstances. No financial background. She was traveling in this lovely train with dreams in her eyes. एक ख्वाब देखा हुआ था. मैं पढ़ूंगी, मैं ये पढ़ूंगी, मैं वो करूंगी. And her father would struggle every day, selling vegetables in a push cart in Yogeshwari. सुबह जाते थे, दिन भर चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे मौसम अच्छा हो, खराब हो, सब यहाँ बेचते थे. आउटसाइड ऑफ कॉलेज इन जोगेश्वरी. उन्हें भी बहुत उम्मीद थी अपने पूरे बच्चों पे. इनकी माँ को बहुत उम्मीद थी, भरोसा था अपने बच्चों पे. और ये बच्चे इतने अच्छे थे कि they said, yes, God's grace in us, we will live up to the dreams of our parents. तो ये बच्ची जो है जोगेश्वरी से बैंड्रा के अंजुम स्कूल में गई थी इम्तिहान देने, फाइनल ईयर स्कूल. एंड जब वो लौट रही थी नियर जोगेश्वरी स्टेशन, उस भीड़ में, उस दौड़ में, उस पुशिंग में, उस बेपरवाह इंसानियत का एक नमूना सामने आया. शी गॉट पुश्ड आउट. She fell on the tracks. She lost her legs in a major way. 7th October 2008. Any other person would have given up. But this girl said, no, these limitations will not overpower me. उनके दिमाग में एक ही ख्याल था, all limitations are self-imposed. आपकी जितनी भी बंदिशें हैं आपने खुद बनाई हुई है. Otherwise you are unstoppable. कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती. उसका आशीर्वाद, उसकी blessings, उसका हाथ के ऊपर है और हमेशा है. She believed in that. She was in the hospital for a couple of months. And she was in treatment, prosthetic, etc., etc. And then she wanted to become a doctor. Imagine, no income at home, very low income, financial strain. पिताजी रोज सुबह से शाम तक काम करते हैं, मदर एट होम, और भी बच्चे भी कर रहे हैं. She wanted to become a doctor. So she applied for admission into a medical college. And the medical college said, sorry, we cannot give you admission. उन्होंने पत्ता खोल के दिखा दिया कि हमारे रूल कहते हैं कि किसी का भी 70% से ज्यादा हैंडीकैप हो, हम उसको एडमिशन नहीं देंगे. कितनी अंधे हैं आपके रूल्स और रेगुलेशंस. कैलिबर को नहीं देखते हैं, रुकावटें डालने में और काबूगिरी में, सिर्फ रूल दिखाने में उनकी खुशी होती है. क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, कोई नहीं बताता है. And this girl had 88% disability. There were some good human beings, good souls, whom she met. ऊपर वाले ने कनेक्शन भेजा. And they filed an application in the courts. And the very beautiful judge, vice judge, when they came, said कि सर हमारा तो रूल ये है,
70 से ज्यादा नहीं दे सकते, बस नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। उस जज ने उसकी तरफ देखा, केएम वाले की तरफ, केएम के वकील को देखा, उसने कहा बेवकूफ, ये लड़की कोर्ट हियरिंग के लिए हर बार आ सकती है, तुम्हारी क्लास में नहीं आ सकती, कैसे बेवकूफी के बाद फटाफट एडमिशन दो। And then she got admitted. She had passed with over 90% in school. She's become a doctor today. She's passed it in first class. She's a living example of how to live life and not suffer. Life is meant to be lived. Ladies and gentlemen, I'm very proud today to introduce to you Roshan Sheikh. Please put. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उसकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और एज़ अ डॉक्टर लोगों की खिदमत करती हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था व्हेन आई वाज इन 11th एंड आई लॉस्ट माय बोथ लिम्स, वन फ्रॉम अबाव नी, राइट वन, एंड लेफ्ट वन फ्रॉम बिलो नी। व्हेन आई वाज ऑन ट्रैक I was there for 45 minutes and कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया था मेरी। I was crying there। मैं पानी मांग रही थी, लोगों से मदद मांग रही थी। मैं अपनी बैग से डायरी निकाल कर उन्हें अपने घर का नंबर बताया, मेरे पास फ़ोन नहीं था उस वक्त, कि प्लीज़ मेरे घर पर कॉल कर दो कि मैं यहाँ ट्रैक पर पड़ी हूँ अपने एक पैर कटे के साथ में। बट वहाँ पे 45 मिनट मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती है। और 45 मिनट के बाद एक पर्सन आते हैं जिनकी दुकान होती है, वो मुझे मेरे घर पर कॉल करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं थोड़ी बहुत, और आफ्टर दैट मुझे रेलवे से हेल्प मिलती है और रेलवे वर्कर्स मुझे कूपर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ मसलिहत रखी थी कि कूपर हॉस्पिटल में भी ओटी स्ट्राइक चलता है उनका, और मैं 1 बजे तकरीबन कूपर हॉस्पिटल गई थी और 6 बजे तक मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है वहाँ पर। और उस ट्रीटमेंट डिले की वजह से मेरे लेफ़्ट लेग में गैंग्रीन हो गया और उसी की वजह से मेरा लेफ़्ट लेग भी काटना पड़ा। तो उसके बाद मेरी फैमिली बहुत कोशिश के बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दिया और फाइनली मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल मिल्लत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ मैं तकरीबन 2.5 मंथ एडमिट थी। वहाँ पर जब मैं एडमिट थी और मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया मेरे सेकंड लेग के बारे में कि आपका दूसरा लेग भी कट गया है। मुझे एक लेग के बारे में ट्रैक पे ही पता था कि मेरा राइट वन कट गया है, बट सेकंड लेग के बारे में अपी ने बताया। तब मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे दोनों पैर कट गए हैं और मैं एग्ज़ाम देकर वापस आ रही थी अपने घर। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अपना एग्ज़ाम कैसे दूँ और मेरे एग्ज़ाम का क्या होगा, और मेरा पहला ही टेस्ट था 11th का। लेकिन फिर उसके बाद जब दोनों पैर कट गए तो मैंने बस अपने दिमाग में यही सोचा कि अब मैं मूव कैसे करूँगी, मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाऊँगी जब दोनों पैर ही नहीं है मेरे पास। और मैं 16 साल की थी तभी। 16 साल की उम्र में मेरे दोनों पैर छिन गए मुझसे, और बस 1 सेकंड में ट्रेन एक्सीडेंट में मैं बस यही सोचती थी। और फिर जो लोग मुझे देखने आते थे हॉस्पिटल में, वो भी मुझे देखकर अजीब कमेंट किया करते थे। जैसे कि हमारी सोसाइटी होती है, खासकर मुस्लिम सोसाइटी में एक और होता है कि लड़की है, लड़की के 2 पैर कट गए हैं, उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, उससे कोई शादी नहीं करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी बातें बनाते थे कि लड़की अभी 16 साल की उम्र में वापस मम्मी के कंधे पर आ गई है, माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई है। ये सारी बातें मुझे इतनी हर्ट किया करती थी और मैं खुद सोचती थी कि अभी इसके बाद मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, मेरे पास 2 पैर नहीं है, मैं क्या करूंगी आगे। लेकिन उस वक्त मेरी स्कूल, मेरी फैमिली, मेरी जीजू की फैमिली, मेरे कॉलेज वालों ने, बहुत सारे लोग हेल्प के लिए आए थे उस वक्त, मेरे डॉक्टर ने, उन्होंने मुझे इनकरेजमेंट दिया कि नहीं, आपके सिर्फ 2 पैर गए हैं, आपके पास एक ज़हीन दिमाग है। मैंने 92% स्कोर किया था एसएससी में, तो उस बिना पर उन्होंने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप जो चाहे वो कर सकते हो।
और आपके 2 पैर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है। आप अपने अंदर हौसला मत टूटने दो, और इसे अगर आप हौसला टूटने नहीं दोगे तो आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि 2 पैर खोने के बाद तो मैंने किसी को नहीं देखा था मेरी लाइफ में, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था कि किसी के पास 2 पैर कट गए हैं और वो चल रहा है। बट मेरे डॉक्टर बोलते थे कि आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारोगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपके 2 पैर नहीं हैं। लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं होता था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन उसके बाद भी मम्मी ने इनकरेज किया, डॉक्टर ने किया। मैंने 11th अपना क्लियर किया व्हीलचेयर पर, और मिड 12th में मेरे आर्टिफिशियल लेग लगे। और आर्टिफिशियल लेग लगने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि सीरियसली मैं वापस से चल सकती हूँ, एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हूँ दूसरे लोगों की तरह। बस मेरे हाथ में पहले 2 क्रचेस हुआ करती थी, रिसेंटली 1 क्रचेस मैं यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रॉम दैट डे मेरी अल्लाह पर भरोसा और बढ़ गया कि अल्लाह ने मेरे साथ जो किया वो अच्छा ही किया। और हमेशा मेरी मम्मी बोलते थे, मैं जब डिप्रेशन में जाया करती थी, कि बेटा तेरे साथ जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है, बिकॉज़ अल्लाह अपने बंदों का कभी बुरा नहीं चाहता। अल्लाह ने जो भी आपके साथ किया, आपके सिर्फ 2 पैर गए हैं। आप शुक्र करो कि उस ट्रेन एक्सीडेंट में, चलती हुई ट्रेन, फास्ट ट्रेन थी, आपकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी, तो इसका कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होगा। और अल्लाह आपसे क्या काम लेना चाहते हैं आपको अभी नहीं पता चलेगा, आपको आगे की लाइफ में पता चलेगा। नाउ मैं अभी ये बोल सकती हूँ कि मेरी मम्मी सच्ची कहा करती थी कि मैं आज डॉक्टर हूँ, तो बिकॉज ऑफ वो एक्सीडेंट की वजह से। अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मैं आज यहाँ पर खड़े होकर एज ए डॉक्टर आपसे इंट्रोड्यूस होती, या फिर आपके सामने ये सब बोल पाती। उसके बाद मैंने अपने आर्टिफिशियल लेग लगाए, और फिर मैंने 12 अपना क्लियर किया। 12 में मैंने 75 स्कोर किया, एंड CT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल के लिए। और डॉक्टर ने ही मुझे इनकरेज किया, डॉक्टर संजय कंथारिया, कि आप अपनी लाइफ में अगर आप कुछ गोल करते हो तो आप ये सोचो कि आपको डॉक्टर बनना है। काफ़ी लोगों ने एडवाइस दिया कि आप ऑफिस वर्क करो, BSc करो, कुछ भी करो, बट बैठने वाला काम करो। बट डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया कि नहीं, आप डॉक्टर बनो। आप लोगों को सिर्फ डॉक्टर बनकर ये बता सकते हो कि आप अपनी लाइफ में हारे नहीं हो। आपके सामने जो लोग बोलते हैं कि आप अपने मम्मी पापा के ऊपर बोझ हो, आपके साथ बुरा हो गया है, आपका फ्यूचर डार्क हो गया है, बट आप डॉक्टर बन के उन लोगों का जवाब दे सकते हो। तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया, मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैंने CT अपीयर किया, CT में 3rd रैंक लिया, और आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरा 3rd रैंक आ गया है, अब मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा, मैं मम्मी पापा का सपना पूरा कर लूँगी, लोगों को जवाब दे दूँगी। बट वहाँ पर भी हमारी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में मेरा 88% डिसेबल करार दिया मुझे, और क्राइटेरिया इज़ मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 70% होता है। तो आई वॉज़ अबाउ 70, तो मुझे उसी शाम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आप मेडिकल में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो उस वक्त तो मुझे बहुत सदमा लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद मम्मी ने इतना सब कुछ किया, फैमिली ने इतना किया, मैंने किया, बट अभी इस मोड़ पर आकर वो मुझे नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे डॉक्टर ने वापस एक हिंट दिया कि आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट इज़ लास्ट होप फॉर यू। मैं हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मोहित शाह, गिरीश गोडबोले सर ने देखा, VV पाटिल सर ने मेरा पूरा केस हैंडल किया, एंड आफ्टर 1.5 मंथ मैंने वहाँ से मुझे ऑर्डर मिला हाई कोर्ट से कि आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो। और अगस्त 2011 में आई गॉट एडमिशन इन KEM हॉस्पिटल, विच इज़ बेस्ट एंड नंबर 1 हॉस्पिटल ऑफ द इंडिया। देन उसके बाद मैं ऑलरेडी केस की वजह से 2 मंथ लेट हो गई थी, और मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मेडिकल का, तो मैं पहली डॉक्टर हूँ, मम्मी की तरफ से भी, पापा की तरफ से भी। तो मैं बहुत डरी हुई थी, और काउंसलिंग में भी मुझे बताया गया था कि 50% इज़ मिनिमम पासिंग रेट है, और मेडिकल लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, आपसे नहीं होगी करने। लेकिन ये सब बातें थी, लेकिन मम्मी मुझे समझाती थी कि आपने कोर्ट में केस दायर कर दिया है, अगर आपकी किस्मत में होगा और अल्लाह ताला चाहते हैं आप डॉक्टर बनो, तो आपको ऑर्डर मिलेगा ही। और जब मुझे ऑर्डर मिला, उसके बाद मैंने 2 महीने जो मेरे लेट हो गए थे, और KEM हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर सारे डॉक्टर्स के बच्चे आते हैं, तो उन सबको देख के मेरे अंदर और थोड़ा लो कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और मैं उर्दू मीडियम से भी थी।
और फिर डिसेबिलिटी की वजह से, क्योंकि एक क्लास हमारी यहाँ होती है, एक क्लास वहाँ होती है, तो मुझे लगा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ। बट मैंने जब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास से पास किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और उसके बाद एक ही ड्रीम कर लिया कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ, बिकॉज फर्स्ट ईयर जब मैंने क्लियर कर लिया है तो आगे का भी मैं क्लियर कर लूँगी। देन सेकेंड ईयर मैंने डिस्टिंक्शन लिया, थर्ड ईयर फर्स्ट क्लास, एंड फोर्थ ईयर फाइनल ईयर इज़ अभी मेरा रिजल्ट आया फेब में, मैंने फर्स्ट क्लास से क्लास पास किया। और MBBS फर्स्ट क्लास से पास करने के बाद अभी मेरा इंटर्नशिप है KEM में, एंड 5-6 मंथ हो गया है उसे। तो मैं अपनी ये स्टोरी मैं आपको इसीलिए सुना रही हूँ कि मैं आपकी नज़रों में या लोगों की नज़रों में अपने लिए सिंपैथी नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देखकर सिंपैथी दिखाए या हमदर्दी दिखाए, या वो एक आम लैंग्वेज में करते हैं, ची बच्ची के साथ क्या हो गया है कि इतनी खूबसूरत लड़की है और उसके 2 पैर नहीं है। अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं जब रास्ते पर चलती हूँ तो, या फिर अपने वार्ड में होती हूँ तो पेशेंट अक्सर मुझ पर ऐसे कमेंट करते हैं कि बेचारी पता नहीं क्या हो गया, इसको 2 पैर नहीं है इसके। बट मुझे वो सुन के उनके लिए बुरा लगता है कि वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरे 2 पैर नहीं होने के बाद भी मैं आज डॉक्टर हूँ, मैंने आज इतना सब कुछ किया है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग जिनके साथ भी जो कुछ भी हो या कोई भी परेशानी हो आपकी लाइफ में, जो भी हो, बस आप लोग अल्लाह पर भरोसा रखिए। बिकॉज़ जैसा कि सर ने बताया कि अल्लाह हमारे साथ है और हम उसकी क्रिएशन है, तो वो नहीं चाहता कि हम ट्रबल में रहें, बिकॉज़ हम उसकी क्रिएशन है। हमें दुख होगा तो उसे दुख होगा, तो और अल्लाह ताला हमें सबसे ज़्यादा चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ गड़बड़ है हमारे साथ, तो मे भी वो कुछ मसलहत होगी उसके पीछे, या हमारे साथ कुछ अच्छा आगे होने वाला है उसके थ्रू। तो बस अल्लाह पे भरोसा रखिए और आप लोग उम्मीद मत हारिए। आपके साथ अगर बुरा वक्त है तो आगे अच्छा वक्त भी आएगा। अगर मैं एक्सीडेंट के वक्त अपना हौसला हार जाती, हिम्मत हार जाती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती या डॉक्टर नहीं बन रही होती। एक्सीडेंट नहीं होता तो आप डॉक्टर भी नहीं होती। एग्जैक्टली मैं बेड पर पड़ी होती मम्मी पापा के ऊपर, मम्मी मुझे वॉशरूम लेकर जाते, मैं कुछ नहीं होती आज। बट मम्मी ने, सब लोगों ने करेज किया, काफ़ी सारे हेल्पिंग हैंड्स आए मुझे और हौसला मैंने नहीं हारा। दैट्स वाई आई एम हियर। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, एक उर्दू का शेर है, हौसले फ़तह की बुनियाद हुआ करते हैं, हौसले फ़तह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपती हाथों से तलवार उठाया न करो। जब हौसले, अगर अब हौसले जीत की नींव होते हैं, हम कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले नींव जो गाड़ते हैं वो काम करते हैं हौसले। अगर आप पहले ही हौसला हार जाओगे तो फिर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आप डरते डरते कोई भी काम मत करो, बस अल्लाह पर भरोसा रखो और आगे आपको जो करना है, जो भी लाइफ में है पॉजिटिव चीज़, उसे करने की हिम्मत रखो। दैट्स इट। थैंक यू। Even one word more after she has spoken will be diluted. Nobody can say another word after what she has said. She has been an inspiration for me. She's an inspiration for you today. Yes. And for the hundreds and thousands who will watch this YouTube, please tell them to send it everywhere. She is God's messenger on earth to inspire humanity. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.